Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we will start revision of lesson number 8 fraction. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in textbook. We will see what you had learned in this lesson. So what you had learned in this lesson, we had learned first recall exercise. So in this topic we had learned write what fraction the shaded parts is of the whole. Here giving some diagram. So first how many parts are shaded in the whole. So how many parts of the rectangle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total numbers of parts we are writing in the denominator. Total numbers of 6 parts of the rectangle. From the 6 parts, how many parts shaded? 1, 2, 3. So we are writing here 3. And here question number 2. In the above figure, write the fraction for the parts is not shaded. How many parts are not shaded? So total numbers of parts is the 6. And how many parts is not shaded? 1, 2, 3. So we are writing here 3. So this is question number 1. That all example like that question number 1. Then question number 3 we had learned the shade the parts of each whole is as a indicated. Here giving some diagram. For example, two numbers here have a that rectangle have a total numbers of how many parts? 12 parts. So here denominator writing in the 12 parts. From the 12 parts, how many parts we want to shade it? 5. So we are shaded here 5 parts. So fraction is 5 divided by 12. So this is question number 3. Then question number 4, write the numerator and denominator. Now we here want a denominator which is the numerator and which is the denominator. From the 5 by 6, 5 is called the numerator and 5 is called numerator and 6 is called denominator. So 6 is the denominator and 5 is the numerator. So this is question number 5. Then after we had learned the equivalent fraction. Now look at here this diagram. When we are looking at all diagram, first this is divided into the 2 parts. ये क्या है? रेक्टेंगल है. पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, देन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहले आधा पार्ट्स को शेडेड किया, देन यहाँ पे 2 पार्ट्स को शेडेड किया, यहाँ पे 4 पार्ट्स को शेडेड किया. अगर हम तीनों डायग्राम्स को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सेम पार्ट्स को क्या किया है? शेडेड किया हुआ है. सिर्फ यहाँ पे क्या किया है? 2 के जगह पे इसके 4 क्या किए है? पार्ट्स किए. यहाँ पे 4 की जगह पे और 2 डाल के 8 पार्ट्स की है. लेकिन अगर हम तीनों को सेम देखेंगे तो तीनों का शेडेड किया हुआ पार्ट्स कैसे दिखेगा? सेम दिखेगा. इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1/2 इक्वल टू 2/4 एंड 2/4 इक्वल टू 4/8 हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे. देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 8.1. यहाँ पे क्या दिया था? हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन देखना था. जैसे एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्या है? स्क्वायर है. तो यहाँ पे क्या किया है? इनके 4 यहाँ पे 4 पार्ट्स किए और 1 पार्ट्स को शेडेड किया. यहाँ पे 8 पार्ट्स किए और 2 पार्ट्स को शेडेड किए. अगर दोनों डायग्राम को देखेंगे तो क्या दिखेगा? सेम दिखेगा. सो हम बोल सकते हैं 1/4 इक्वल टू 2/8 ऐसे हम बोल सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है? कलर शोइंग द इक्वलेंट फ्रैक्शन. यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया था तो हमें कलर करके उसको इक्वलेंट दिखाना था. देन फाइंडिंग इक्वलेंस फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा? फाइंडिंग इक्वलेंस फ्रैक्शन बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड. हमने कौन सी मेथड यूज़ की थी? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड को यूज़ करके हमने इक्वलेंस फ्रैक्शन को निकाला था. मतलब जैसे 1/2 है, ठीक है, 2/4 है, 1/2 है. अगर हम 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? 2/4 मिलता है. एंड 2/4 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? 4/8 मिलता है. तो ये हमने क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन. देन डिवीजन मेथड में क्या किया था? जैसे क्या है? 1/5 है. 1/5 में अगर हम 2 मिलाएंगे तो कितना आता है? 2/10 आता है. मतलब यहाँ पे 2/5 है. यहाँ पे हमने क्या किया है? ये क्या है? डिवीजन का ही है. मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम है. डिवीजन में देखो
2/2 है और 4/2 है। 2/4 को अगर हम, यही एग्जाम्पल है, 2/4 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जो नंबर हम डिनोमिनेटर में लेंगे वही सेम नंबर हम न्यूमरेटर में लेते हैं। दोनों को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलता है, 1/2 मिलता है। 2/4 एंड 1/2 आर द इक्वलेंस फ्रैक्शन। 1/2 एंड 2/4 ये दोनों क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। 4/8 डिवाइडेड बाय 2, 4/8 को हम, ये जो 4/8 है इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर की मिलेगा 2/4 मिलेगा। मतलब 1/2, 2/4 एंड 1/2, 2/4 एंड 4/8, 3 आर द इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो हमने क्या किया था, फाइंड इन इक्वलेंट फ्रैक्शन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व किया था। देन इसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भरे थे। देखो 1/3 है एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हमें जगह लिखना था नंबर क्या आता है, और यहाँ पे 6 है। 3 में क्या मिलाने के बाद आंसर 6 आता है, 3 को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आता है। तो जो नंबर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर हम न्यूमरेटर में करेंगे तो यहाँ पे आता है 2 आता है। तो ऐसे हमने एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व किया था। देन चेकिंग फॉर इक्वलेंस। चेकिंग फॉर इक्वलेंस के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेकिंग इक्वलेंस को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमें क्या करना है, चेकिंग इक्वलेंस, हमें चेक करना है कि इक्वलेंस है कि नहीं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 21 डिवाइडेड बाय 49 एंड 3 डिवाइडेड बाय 7 है। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इक्वलेंस है कि नहीं। तो 21 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 7 1 सा 7, 7 2 सा 40, सो 147 आ गया। अभी हम 49 में 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन 9 3 सा 27, सो 7 यहाँ पे 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14। तो दोनों का आंसर सेम आ गया, मतलब ये क्या है, इक्वलेंस है। दोनों क्या है, इक्वलेंस है। देन आफ्टर ये भी हमने सॉल्व करके दिखाया था बाय यूजिंग द इक्वलेंस फ्रैक्शन को। देन फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। फ्रैक्शन इज लोवेस्ट टर्म मतलब क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म इफ यू ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द 1। अगर दोनों का फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन 1 ही फैक्टर आता है तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। इसमें हम डिवीजन मेथड यूज़ करके फ्रैक्शन को निकाला था। ठीक है, जैसे 6 डिवाइडेड बाय 12 है, उसको हमें क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 12 को 2 के साथ पहले डिवाइड करेंगे। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 3 डिवाइडेड बाय 6 आता है। अभी 3 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है, ये दोनों भी लोवेस्ट फैक्टर में आ गया क्या, नहीं। तो हम 3 और 6 कौन से टेबल में आता है, 3 और 6 दोनों भी 3 के टेबल में आता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 6 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 1/2 आता है। तो ये एक्सरसाइज 8.4 हमने ऐसे ही सॉल्व किए थे। देन टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन होते हैं टाइप, लाइक एंड अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन मतलब व्हेन द डिनोमिनेटर इज द सेम, when the denominator is same of the all set is called the like fraction and the denominator are the different of the fraction is called the unlike। जब denominator अलग अलग होता है तो उसको हम unlike fraction बोलते हैं। सो ये like fraction and unlike fraction। then proper and improper। proper मतलब क्या होता है एंड इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज स्मॉल देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्मॉल होता है तो इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। एंड व्हेन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो उसको हम प्रॉपर बोलते हैं। देन मिक्स फ्रैक्शन, जब 2 फ्रैक्शन एक साथ में कंबाइन होते हैं उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। देन यूनिट फ्रैक्शन, यहाँ पे 1/2, 2/3 1/1, 1/2, 1/3 एंड 1/4 ये सभी क्या है, सभी का न्यूमरेटर 1 है। जब सबका न्यूमरेटर 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। देन एक्सरसाइज 8.1 में हमने सबसे पहले क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है वो निकाला था। फिर इसमें हमने नेक्स्ट 5 फ्रैक्शन निकाला था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर सी में प्रॉपर फ्रैक्शन को निकाला था। देन इसमें इम्प्रॉपर में
देन कन्वर्शंस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं कन्वर्ट, यहाँ पे लिखा देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 39 डिवाइडेड बाय 5 है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 39 के साथ डिवाइड करेंगे। सो 5 के टेबल में 39 आता है क्या, नहीं। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 35। 35 इज द प्लेस ऑफ 7। अभी यहाँ पे 39 माइनस 35 कितना हो गया, 4 हो गया, और हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 7 आ गया, और रिमाइंडर 1 आ गया। अभी हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं इसको हम लिखेंगे 7 4 डिवाइडेड बाय 5। हम क्या करते हैं, जो क्वोशंट होता है वो होल नंबर लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है वो सेम नंबर हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। सो हमें आंसर कितना मिल गया, 7 4 डिवाइडेड बाय 5 हमें आंसर मिल गया। अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर ये देखो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 4 39, और डिनोमिनेटर में 7 लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करके हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। देन कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, जब वो क्या होता है, जो भी बिग नंबर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमें कंपेयर करते समय अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जो भी बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देन वेन क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, सॉरी न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग होता है, न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग होता है, उस केस में क्या होता है, जो भी नंबर स्मॉल होता है वो बड़ा होता है, जो भी नंबर स्मॉल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में नहीं तो न्यूमरेटर सेम होता है तब। देन कंपेयरिंग ऑफ द लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी अलग अलग होता है उस समय हम यूज करते हैं LCM। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाय 5 और 1 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 और 3 के नंबर में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 5 और 3 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है। LCM क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे छोटा मतलब जैसे हमने 5 का टेबल लिखा है और 3 का टेबल लिखा है, ठीक है। अभी दोनों में सबसे पहला कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है, 15 आ रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। फिर हमें दोनों का डिनोमिनेटर 15 लाना है, तो हमें 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 15 5 के टेबल में 3 वाले प्लेस में है और 3 के टेबल में 15 कौन से प्लेस पे है, 5 वाले प्लेस पे, इसलिए हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर में करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 में हम 3 के साथ 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 के साथ, तो हमें 6 डिवाइडेड बाय 15 मिल गया। अभी 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहाँ पे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 के साथ, 3 को 5 के साथ, सो 5 डिवाइडेड बाय 15 मिल गया। तो अभी इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 डिवाइडेड बाय 15 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 15। जब क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तब बड़ा नंबर जो भी है वो क्या होता है, बड़ा होता है। देन हम ऐसे बोल सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय 3। देन इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, सेम एलसीएम मेथड यूज करके, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग। देन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉल नंबर में हमने उसको किया था। देन आफ्टर वी हैड लर्न द फ्रैक्शन एज डिवीजन, हमने क्या किया था, जो डिवीजन मेथड है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया था और फ्रैक्शन फॉर्म को डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने
ये एक्सरसाइज 8.8 को सॉल्व किया था। देन एडिशन फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम क्या करते हैं, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उसको 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको ऐड करते हैं। मतलब 8 को 1 टाइम लिखेंगे और 3 और 4 को मिला देंगे तो कितना आता है, इसका आंसर 7/8 आता है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, जब क्या होता है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तब सेम मेथड जैसे हमने क्या किया है, एडिशन में यूज़ किए। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब 8 - 5 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/13 इसका आंसर आ जाता है। तो एक्सरसाइज 8.10 में क्या था, सब्ट्रैक्शन है, और एक्सरसाइज 8.9 में एडिशन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तब। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब दोनों का डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट होता है, उस समय हम यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड को यूज़ करके हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेके आएंगे। एलसीएम मेथड यूज़ करके हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेके आएंगे और फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 5/6 है एंड 3/4 है। अभी 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 6 और 4 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 12। 6 के टेबल में सेकंड वाले प्लेस पे 12 आता है, 4 के 3 वाले प्लेस पे 12 आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5/6 है, अगर इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10/12। 6 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया है, 12 आ गया। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 10 आ गया। देन 3/4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 लेके आएंगे और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 9 आ गया। अभी क्या आ गया है इसका, 10/12 एंड 9/12 आ गया। अभी दोनों का डिनोमिनेटर कैसे आ गया है, सेम आ गया है। तभी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 10 + 9 कितना होता है, 19/12। नाउ ये क्या है, इनप्रॉपर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर का। जब भी हमें क्या दिखता है, इनप्रॉपर नंबर दिखता है, मतलब जब हमें डिनोमिनेटर स्मॉल दिखता है न्यूमरेटर से, तब हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी 12 ये स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था 12/19। 19 12 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे। 12 1 वाले प्लेस पे आता है और 19 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, 7 आ गया है। तो होल नंबर में 1 जो क्वेश्चन आ गया है वो जो, एंड रिमाइंडर हमने 7 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हमने 12 लिखते हैं। तो आंसर कितना मिल गया, 1 7/12 हमें आंसर मिल गया। हम कन्वर्ट कब करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जब हमें डिनोमिनेटर स्मॉल दिखता है तब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज एडिशन। देन एडिशन के बाद हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, तो हम 1 एग्जांपल देखेंगे। सेम एलसीएम मेथड यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में इनप्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3 × 5 15, 15 + 1, 3 × 5 15, 15 + 1 16। तो यहाँ पे 16/3 आ गया। एंड 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे आ गया 5/2 आ गया। अभी हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है इनप्रॉपर में। 16/3 एंड 5/2, 16/3 एंड 5/2। अभी 3 और 2 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 6। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 आता है। तो हमें 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16/3, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 32 एंड 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम
क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 है तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड 2 को 3 के साथ, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो हमें कितना आ गया, 32 एंड 15 है। 32 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 17 आ गया। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 6 है, तो डिनोमिनेटर में हमने 6 लिख दिया। अभी ये देखो इन प्रॉपर में है, क्या है, इन प्रॉपर है, मतलब डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर से, तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2, तो हम इसको डिवाइड जब करते हैं, यहाँ पे डिवाइड क्या है देखो, 6 के टेबल में 17 आता है क्या, नहीं। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 12। 12 को यहाँ पे होता है 2 वाले प्लेस पे होता है, और 17 माइनस 12 किया तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो हमने होल नंबर में क्वेश्चन लिख दिया है 2, और जो भी रिमाइंडर है वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है 6। तो हमें ना क्या मिल गया है, 2, 5 डिवाइडेड बाय 6 हमें आंसर मिल गया है। तो ऐसे हमने बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड यूज करके हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टोरी सम देखे थे, ठीक है। एक स्टोरी सम हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 8.13। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व की है, हमारे ऑलरेडी हो गई है, तो अभी फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोहन रीचेस स्कूल in school buses 3/8 hours. He walked to school in the 3/4 hours. How much more time does it take his walk to school than he go by a bus? देखो, मोहन रीच स्कूल इन द स्कूल बस से जब वो जाता है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 3/8 आवर्स लगता है। एंड वो वॉक करके जाता है तो कितना लगता है, 3/4 आवर्स लगता है। यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे 3/4। सो उसको वॉक करके जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। टाइम टेक टू वॉक इन स्कूल, वॉक करते कितना टाइम लग रहा है, 3/4 आवर्स लगना है, और बस के साथ 3/8 आवर्स। अभी दोनों का डिफरेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3/4 में से माइनस करेंगे 3/8 को। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 8 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 8 आता है, तो 3/8 को एज इट इज़ लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 के साथ। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 6 आता है, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ये 6 डिवाइडेड बाय 8 और 3 डिवाइडेड बाय 8 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे, और यहाँ 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है, 3/8। सो उसको कितना टाइम लगेगा, 3/8 आवर्स उसको टाइम लगेगा, दोनों का डिफरेंट आता है। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सरसाइज 8.13 ऑलरेडी हमने डन की है, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन मैथमेटिक्स ए आपको मैंने होमवर्क दिया था, प्रोजेक्ट दिया था, एंड मैथमेटिक्स बी, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपके एग्ज़ाम के बिफोर एक दिन पहले मैं एक बार फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी। So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.